ये है ना नाम क्या है दानिश 120 मुझे समझता जिससे वो आप पानी भी ऐसे आत्म होता भी तब उस चीज़ में आदत वाना कर आज ते आप क्या इस भाई बंद बस हो रहा है आप आप $5 आप इस बैंक में वेट करें पहले उनको जाने देना उसको मेरे पास पहुंच जाता है आज यहाँ पे बीच में एक साइड में इसलिए ठीक है ऐसे Is your name not still inside? पूरा नाम बता Is there possibility of another box? Ballot box will go this. लड़के एक मिनट Zabut sir. सर इसको फोन कैसे करना है ठीक है कम पास बॉक्स के होने की इस तरह डालने जहां आपको बात किया फिर इस तरह कोड करता है फिर इस तरह संबल के सामने ये बोलते हैं संबल पर नहीं मैंने बोला संबल के सामने आवाज खड़ा बोल
Next, जल्दी बेटा. जल्दी जल्दी निकलो बाहर जल्दी वो डालेगा जल्दी पार्क में आए प्लीज, उधर इधर ना घूमे प्लीज, उधर इधर ना घूमे प्लीज। और 11th गर्लर्स 9th गर्लर्स जिन बच्चों ने अपना वोट पार नहीं किया है वो बूथ नंबर 2 पे रिपोर्ट करें और अपना वोट पार करें प्लीज। शाम क्या शुभान ये मदरस में और लगे तो आप लोग, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोग इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें बच्चों का भी रोल है और जितने भी हमने स्टाफ मेंबर्स को डिफरेंट एसेंशियल मैंडेटरी ड्यूटीज पर तैनात किया है, हम उम्मीद रखेंगे वो अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से बिल्कुल उसको फर्ज समझकर कामयाबी से सर अंजाम देंगे। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जो भी वोट पार करके आ रहे हैं वो डिफरेंट लॉन्स पर खड़े हो जाएं, कोई भी इंडिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं ये आपका इवेंट है, ये आपका दिन है, ये दिन ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बने और अल्लाह ताला करे कि आपका रोशन मुस्तकबिल हो। ये स्कूल दिन ब दिन कामयाबियां हासिल करता रहे। वसलाम। कि वो लाइनों को सीधा करें प्लीज और कंटेनर में जितने बॉयज बैठे हैं और गर्ल्स वो मेहरबानी करके कंटेनर को खुला छोड़ के children understand what's democracy and what's right to franchise. This is a miniature of that exercise which they will have to implement in their life practically after attaining their adolescence, maturity. Right, sir. So this will help them in a long way. Yes. This is academic side, and when they will understand what right to franchise is, they will exercise it then in the coming days. That's basically the concept behind this. And this fervor and this kind of enthusiasm they have, this will help them a lot in understanding what is democracy, what is right to franchise, and what's all this about. This will help them a lot in the coming. And this is an endeavor. We all the teachers here, with the principal, all the academic faculty, they're all behind this, so that will make it very interesting and fruitful. So the special thing that I noticed about this election is, after a meeting was called by the worthy principal of this institution, almost all the staff members have been engaged and they have been designated at various posts and they have been assigned various jobs. So in totality, how much time did it take you to prepare for this day, for this election day? Honestly speaking, it took us around 1 week to understand how we'll make this possible to put in place all the possible things, so that a huge, large role, there's more than 1100 children here, and how they can be accommodated, how the things could be put in place in a very effective way. It took us around 1 week. It's really
really tough to conduct election where you have, more than 1,500 students and you have got only 5 polling booths to support this all. So, are you sure you are going to succeed this election by this afternoon? Yes, sure. Because all the staff members are enthusiastic and they are overwhelmed to extend their possible support. In every nook and corner, you'll see discipline is there, and all the people are working with enthusiasm, and it's quite possible we will do it, and we have done it in the past also like that. Thank you, sir. We will get back to you soon, sir. So, welcome back. We have been joined by Chief Election Commissioner, Mr. F.A. Gilani Saab. Sir, thank you for joining us. We would like to know from you. It has been really a tough job for you, having more than 1,500 students and conducting this election without even compromising with the teaching and learning process. How do you see this election, sir? As you know, the Election Commission was constituted by the chair during the month of March. It took nearly 1.5 months to design the things. All the things were put in place. We have segregated the sections. We have made the collaboration of all the sections in order to make it a success. We have designed the polling stations within the school. 5 polling stations have been constituted by this commission. The commission worked day and night all together to make this process a success. And we are more confident that all the students have been segregated in such a manner that no such kind of indiscipline shall get created within the institution. And we have put all the students in such a manner that the election process looks like a democratic process in this institution at this time. All right, sir. And how many contesting candidates are there? There are 7 candidates. 7 candidates. And 5 polling booths are going to support this election. Yes. All right, sir. So the time is 12:15. And what do you expect? How much time will it take to complete the polling process? Near about 50% of the polling has been made till now, and it will go up to 2 p.m. After 2 p.m. there will be the counting, and the results will get declared up to 4 p.m. All right, sir. And what's the design of this election? Is it being strictly followed as per the guidelines of ECI? This is according to first past the post system. The first past the post system in which the multi-party system is being introduced. In India, we are having a parliamentary form of the government, and we are having the multi-party system. As such, we allow the students to go through the same way in order to learn the things and to become the learned voters in the future. All right, sir. Do you have any female students? Contesting elections. Yes. One female candidate is also contesting the election. Okay, great, sir. We'll get back to you, sir, on this. Thank you very much, sir. किसी उम्मीदवार के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये याद रखा जाना चाहिए कि कामयाबी एक ही होगी, बाकी 6 इसमें दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रहेंगे, लेकिन आप इसको दिल में ज्यादा हरगिज़ नहीं लेंगे। ये एक एक्सरसाइज है और स्कूल की बेहतरी और बेहतरी के लिए आपको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और आपकी खिदमत को भी इस स्कूल की बेहतरी और बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
पहले राउंड के इख्तिताम पे जो रुझानात है वो आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। मुबश्शिर अजीज 71 के साथ लीड कर रही है। दूसरे नंबर पे है जाकिर हुसैन 52 के साथ जी, और तीसरे नंबर पे है मोमिन फारूक 34 के साथ, और इसके बाद है सईद सादिया 30 के साथ, और 32 है मोहम्मद आरिफ खान। ये अभी तक से रिजल्ट में नोट बंद कर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका सीएम मॉडर्न बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में। आज 18 तारीख है, 18 मई 2022। चूँकि आज का दिन इलेक्शन के लिए जो सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन होना था वो आज ही तय किया गया था। इस हवाले से इस वक्त काउंटिंग जारी है। कुछ ही देर के बाद जो है अनाउंसमेंट करी जाएगी कि जो 7 कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से जो कामयाब कैंडिडेट है वो कौन है। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अफजल लोन साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्कूल कुपवारा का ये जो रीत रही है यहाँ की, हर साल यहाँ पर सेक्रेटरी के इलेक्शंस मुनक़िद किए जा रहे हैं। पिछले महीने से हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पूरा पोलिंग स्टाफ, पूरा पोलिंग अमला जो है, पोलिंग पर्सनल, उसको हमने अपने अपने जॉब के लिए लगाया है। पूरे जनरल ऑब्जर्वर्स को लगाया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को लगाया है, जोनल मजिस्ट्रेट्स को लगाया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स को लगाया है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सवेरे से आप मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर पूरी इलेक्शन प्रोसेस जो है। इसके लिए हमने 5 बूथ्स को मुनक़िद किया था। वहाँ पर हमारी इलेक्शन प्रोसेस जो है, पोलिंग का टाइम जो हमने दिया था वो 1 बजे था। वो कंप्लीट होने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में पूरे 1:30 बजे काउंटिंग शुरू होगी। अभी तक 2 राउंड्स के जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। फाइनल राउंड भी रेडी होगा। कुछ ही देर बाद आपके पास फाइनल अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है कुछ ही देर बाद हम ख़त्म होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो भी लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। कुछ ही देर बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी, फाइनल अनाउंसमेंट। जी डॉक्टर साहब, हमारे सामने जो रिजल्ट है वो यह है कि इलेक्शन या तो हो रहा है या ख़त्म होने को है। लेकिन इसके लिए जो तैयारियां रही वो आपके लिए किन मुश्किलात से आपका गुजरना हुआ? देखिए सर, ये जो इलेक्शन होता है ये हेक्टिक होता है, लेकिन हम जानते हैं कैसे खेलना होता है इन चीज़ों के साथ। हम तो टिपिकल ऑलराउंडर हैं। हमने पूरा इसमें पहले एक महीना पहले जब हमने नोटिफिकेशन जारी की थी तब से ही हम मॉनिटर करते रहे। हमने AROs को अपॉइंट किया था, और फिर पूरा जो प्रोसेस था, जो प्रिंट सेल थी हमारी या मीडिया सेल थी, उनके साथ हम बार बार रवाबित में रहे। तो हम मॉनिटर कर रहे थे इस चीज़ को। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अभी तक तो समूह जा रहा है। कुछ ही टाइम के बाद ये प्रोसेस खत्म होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं बड़े ये अभी 1 महीने से समूह की जा रहा है। आज भी इंशाल्लाह इसका इख्तिताम भी समूह होगा। जी, इस इलेक्शन के हमारे साथ से बात करेंगे। ये जो इलेक्शन की तैयारियाँ जहाँ पर इनका ताल्लुक है, आपको कितना वक्त लगा? क्योंकि यहाँ पर क्लास वर्क जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्लास वर्क भी चलता रहा। तो ऐसे में आपने किस तरह से मैनेज किया और कितना वक्त लगा आपको इन तैयारियों में? देखिए सर, हमारे जहन में ये था, प्रिंसिपल साहब की कोऑर्डिनेशन से हमने पहले ये डिसाइड किया था कि 3 साल 2 साल के बाद हमारे स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन ये एक मैंडेटरी प्रोसेस है। हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का लड़कों को उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमने किया सब कुछ। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ को हमने जहन में रखा कि इनका क्लास वर्क किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हो गई वो 2:30 बजे के बाद हो गई थी। मैक्सिमम क्लास हमारे 2:30 बजे खत्म होते हैं। 4, 4:30, 5 बजे तक हम यहाँ रहे। यही हमारा मोटिव था कि इलेक्शन प्रोसेस भी हो जाए और लोगों का टाइम भी पूरा हो। जी डॉक्टर साहब, इलेक्शन के बाद हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि वोट सेरेमनी वगैरह वो कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह इमीडिएटली हो जाएगा।
उसके लिए हम जा रहे हैं। तो आप जानते हैं मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। हम चाहते हैं कि मेरे रिलीव होने से पहले और सब होगा। चलिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाए। जाते आपने इस स्कूल में रंग भर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Mr. Mehraj bin Shah Sahab to the dais and preside over the function. Thank you very much. इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार, उनके इलेक्शन एजेंट्स और जो हमारा सबसे कीमती असासा है वो है हमारा अवाम, हमारे वोटर्स और हमारे इस स्कूल के अजीज तलबा और तालिबात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सुन लाख लाख शुक्र कि युस एक्सरसाइज 15 दो पे शुरू कर्मत आज इख्तिताम बिल्कुल फ्रीली फ्रेंडली ट्रांसपेरेंटली तो तथ मज करू तुम सारे बचो सारे कैंडिडेटो जबरदस्त अतवास और ये स्कूल क्यों लक्ष्य पे बड़ो जिम्मेदारों तो मुलजिमों फिर अत मे मकदूर मुताबिक पे किसा तिम ड्यूटी असाइन आई कर तम मुताबिक जान खुशी सान अदबन और एहतरामन अपने सरबराही इदारा मोहतरम मेराजुद्दीन शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से इख्तिसार के साथ अपने जरीन कलमात से नवाजें। मोहतरम मेराज अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने हमारे दिल खुश कर दिए। जो डिसिप्लिन का मुजाहिरा आपने किया वो मिसाली है, अपने आप में एक मिसाल है और हमारे दिल इतने खुश हुए कि हमारे दिलों से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन से एक नुमाया डिसिप्लिन का आगाज हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशन में। क्या मैं ये मान लूं? यकीन रखना इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक इदारा होता है जो इलेक्शन प्रोसेस को मुनक्किद करवा, उस इदारे को हम नाम दे क्या ना किस नाम से जानते हैं? शाबाश, इलेक्शन कमीशन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं बेटा? वेरी गुड। तो आपको ये इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, ये रियल कंसेप्ट जो है आपको देने के लिए, इस चीज का सही तस्वीर देने के लिए हमने अपने स्कूल में स्कूल इलेक्शन कमीशन का कयाम जो है वो अमल में लाया। ठीक है, क्या लाया अमल में? किसका कयाम? स्कूल इलेक्शन कमीशन। ठीक है बेटा, और आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्कूल इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 अफराद पे मुश्तमिल है। आपके उस्ताद किराम जो हैं उनमें हमारे डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब जो हैं, उनमें सईद फारूक किलानी साहब जो हैं, और तीसरे जो हैं आप जनाब गुलाम अहमद डार साहब जो हैं। इन 3 अफराद पे आपका इलेक्शन कमीशन जो है, स्कूल इलेक्शन कमीशन जो है वो मुश्तमिल रहा। ठीक है ना? और याद रखना चाहिए कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है तमाम तर इख्तियारात जो है स्कूल के तमाम तर कामकाज जो है वो किसके सुपुर्द किया गया? स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले किया गया। ठीक है, यानी आपके प्रिंसिपल ने भी इस इलेक्शन के दौरान इस इलेक्शन कमीशन के तहत काम किया। बात समझ में आ गई ना? होगी कि वो कल जाके जो है फ्यूचर में अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कल जाके जो है अपने लोगों की वो सरकार बनाएंगे। ठीक है, कल जाके
जाके जो है अपने लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की हैसियत से जो है अपने लोगों के लिए काम करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे होंगे जो कल हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप जो है उसका हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उन बच्चों से मेरी गुजारिश ये रहेगी, देखो बच्चों, ऐसे बच्चे जिन्होंने ये मन बनाया है, जिन्होंने ये ठान ली है, जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने लोगों की, अपने कौम की सही नुमाइंदगी करेंगे, तो उनको बहुत मेहनत करनी होगी, वो भी आज से। कब से? आज से। तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, आपको कीन ऑब्जर्वर्स होना पड़ेगा, आपको कीन ऑब्जर्वर्स की से काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है? आपकी नजर हर एक चीज पे होनी चाहिए, आपकी नजर सोसाइटी में हर एक एस्पेक्ट पे होना चाहिए, और आपको पता ये होना चाहिए कि इस वक्त जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, इस वक्त जो हमारे चुने हुए लोग जो हैं उनको देखना होगा, और देखना होगा कि कौन सा काम ऐसा है जो वो ठीक ठाक करते हैं, ठीक है कि नहीं? कौन सा काम ऐसा है उनका जो आपको अच्छा लगता है, जिस काम की वजह से हमारी इस कौम को फायदा पहुंचता है किसी भी शोबे में, और कौन से काम ऐसे हैं जो हमारी कौम के लिए ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर ये फैसला करना है। नहीं, हमें कल जो है इस स्टेट की, इस मुल्क की डेमोक्रेटिक सेटअप में आना है, और जो खामियां हमने अपने जमाने में देखी है, अपने स्कूल डेज में देखा है, अपने कॉलेज डेज में देखा है, अपनी यूनिवर्सिटी डेज में देखा है, उन बुराइयों पे, उन गलत कामों पे हम काम करेंगे, उनको हम एड्रेस करेंगे, अपने लोगों के पैसे के सही नुमाइंदा होके, ठीक है बच्चों? इसका मकसद यही है कि कल जाके आप जो है अच्छे, जेन्युइन और सही नुमाइंदा जो है कि हैसियत से उभरेंगे, सामने आएंगे, और अपने कौम की सही रहनुमाई और रहबरी करेंगे। क्या मैं यही तवक्को आपसे रखूंगा? हाँ बच्चों, तो आज की जो एक्सरसाइज जो है इसका मकसद यही है। इसका मकसद क्या है? तो अगर कोई बच्चा जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, तो इसके लिए ये क्या है, स्कूल क्या है? ये प्रिलिमिनरी फेज है। ये क्या है? प्रिलिमिनरी फेज है। ये रिहर्सल है। क्या है ये? है कि नहीं? तो आप बच्चों बताइए, अब ये स्कूल कितना जरूरी है? ये स्कूलिंग कितनी जरूरी है? तो स्कूल रोज आना कितना जरूरी है? क्या उम्मीद रखेंगे कि आज के बाद आप रोज आएंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सब कुछ मिल जाए जिसके आप हकदार हैं, जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे जो हैं हमारा मुस्तकबिल है, हमारा आने वाला कल है। और उस्तादी वो शख्सियत होती है, ये उस्तादी होता है या फिर माँ बाप होते हैं जो किसी और को ऊपर जो है आगे देखना चाहते हैं, या माँ बाप होते हैं, या उस्ताद होता है, दूसरा कोई जो है वो नहीं होता है। तो क्या मैं उम्मीद करूंगा, ये रखूंगा कि हमारे बच्चे जो हैं अपने उस्ताद किराम का कहना मानेंगे, हमेशा उनकी इज्जत करेंगे ना, उनका कहना मानेंगे ना, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिनसे उसको उनके कंट्रीब्यूशन देगा। मुझे पूरा भरोसा है उस बच्चे पे, लड़का है या लड़की नहीं मालूम, मुझे अभी पता चल जाएगा। जो कोई भी है सब लोग सुन लें, पता चलेगा। तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है स्कूल के हवाले से, स्कूल के डिसिप्लिन के हवाले से। और इस जमन में आपसे और भी एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अब के बाद जो है जब आपका नुमाइंदा सामने आ जाएगा तो उसके लिए जो है हमको हम फैसिलिटेट करेंगे, आपका एक पार्लियामेंट बन जाएगा, स्टूडेंट पार्लियामेंट, ठीक है। और स्टूडेंट पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट सेशन जो है फोर्टनाइटली हुआ करेगा। क्या होगा? हर 15 दिन के बाद जो है ये यूथ स्टूडेंट पार्लियामेंट का सेशन हुआ करेगा, जिसमें जो स्टूडेंट सेक्रेटरी होगा उसकी जो बॉडी जो होगी, जो तश्कील पाएगी, ठीक है, वो मिला करेंगे, स्कूल के मसाइल पे डिस्कस करेंगे, तो फिर अपनी जो डिमांड जो होगी उनको मुरब्बत किया करेंगे और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुंचाया करेंगे। तो हम आपको जो है बराबर एक सिस्टमैटिक अंदाज में जो है हम ये स्कूलिंग जो है आपकी करवाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, जरूरी है कि आपकी कोऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी है, आपका साथ जो है वो बहुत जरूरी है, आपकी पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, आपका डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इसके नतीजे
जो है बहुत ही फ्रूटफुल होंगे। आगे जाके जब आप लोग हमको याद करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हमारे लिए आपके हाथ उसके दरबार जरूर उठा करेंगे इंशाल्लाह ये मेरी उम्मीद है। तो मैं आप सब बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे जो अपने डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया, और साथ ही साथ अपने तमाम जो साथी मेरे हैं कलीग्स जो यहाँ पे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में एक मुकम्मल अंदाज में जो है इस प्रोसेस को इख्तिताम तक पहुँचाया। मुझे ये याद रहेगा कि मेरे साथ मेरे कलीग्स कौन थे, मुझे ये याद रहेगा, मैं इसको भूलूंगा नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर सारे। तो अब मैं सभी को दिल थामने की गुजारिश कर रहा हूँ और मैं दावत देना चाहूंगा अपने इस इदारे के इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर बशीर अहमद खान साहब, वो सामने आएंगे और आप आज के नतीजे आपके सामने पेश करेंगे। उनका साथ देंगे यहाँ पे आने में उनके ARO नसीर साहब और उनके ARO अकबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम खान साहब। कैसे हो भाई, ठीक है? वर्दी प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आपका ये इंडीवर जो है ये लर्निंग इंडीवर था बेसिकली, ये आज इख्तिताम को पहुंचा और आज आपको पता चलेगा कि आपने किसको मुंतखब किया है। मैं पहले उसका नाम लूंगा जो इसमें 7वें नंबर पे रहा। 7वें नंबर पे रहे सुहेल अहमद डॉर। देखो, कमाल ये होता है कि आप कंटेस्ट करते हैं, कमाल ये नहीं है कि आप जीतते हैं, गिरते हैं मैदान जंग है ना, वो तिफल क्या गिरे जो। तो इन्होंने कंटेस्ट किया, कंटेस्ट करना अपने आप में कामयाबी है, इसमें हार और जीत कोई माने नहीं रखता। और छठे नंबर पे जो है, छठे नंबर पे है फैसल इकबाल। और 5वें नंबर पे है सैयद सादिया। उन्होंने बहुत अच्छा कंटेस्ट किया। और अब 5वें नंबर पे सैयद सादिया के बाद चौथे नंबर पे हमारे मोहम्मद आरिफ खान। और अब तीसरे नंबर की बारी आई, तीसरे नंबर पे हमारे मोमिन फारूक। अब हमारे पास 2 कंडे थे, मैं उन 2 को यहां बुलाऊंगा, दोनों आगे आ जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जीतने वाले कंटेस्ट का नाम हमारे प्रिंसिपल साहब है। तो प्यारे बच्चों, ये काम को सुन लीजिए, आराम से बैठना, आ चुप हो जाओ। देखिए, ये आपका इंतखाब है, ये आपकी इज्जत का सवाल है। आगे आगे पता चलेगा कि हमारे बच्चों का इंतखाब कैसा है कि नहीं। तो मैं सब कंटेस्टेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये मैदान में आ गए, ये कंपटीशन में आ गए। लेकिन हर कंपटीशन का नतीजा क्या होता है, एक आगे रहता है, एक उसके
उसके नेक्स्ट रहता है कि नहीं? देखो बच्चों, कोई जीत या कोई हार माने नहीं रखती। मतलब अगर किसी चीज का है वो है मैदान में आ जाना, मैदान में कूद पड़ना, राइट? हाँ, तो बहरहाल तो आज का जो हमारा इमर्जिंग कैंडिडेट जो है, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट, आपका साथी, जिस पे आपकी नजरें, जो आपका इंतखाब, जिस पे हमारी नजरें, जिसके साथ हमारी तौक़ात वाबिस्ता, वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर जाकिर हुसैन।